more easily what others need without being stirred up or by judgments or thoughts. Focus on what you want to respond. ये होता है कनेक्टिंग कम्युनिकेशन कि अगर कोई आपसे कन्वे कर रहा है मैसेज तो विदाउट जजमेंट के, विदाउट उसको मिक्स अप किए, दैट इज कनेक्टिंग कम्युनिकेशन. और फॉर दिस वर्ड कनेक्टिंग कम्युनिकेशन I will explain some more words. This also means that if we want to communicate with others, we must be sure that we are connecting with others. Yes, we don't have only to communicate, we have to connect also. I will make you clear what is the difference between connection and communication. If we are connected, the communication will be more easier and more effective. If we are disconnected, it does not matter what we are communicating because the message isn't getting. जब तक हम अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं, हम क्या मैसेज देना चाहते हैं वो फ्रूटफुल नहीं होगा. तो फर्स्ट वी शुड कनेक्ट विथ अदर. अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कनेक्शन क्या है and communication क्या है and what is the difference between these two. Connection is act of connection. कैसे इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे. and what is communication? Concept or state of exchanging data between entities. Connection जो होता है ना, act of connection, मतलब इसको क्या कहते हैं, आप इस तरह से कनेक्ट हो पाते हैं. जैसे कम्युनिकेशन तो कंप्यूटर्स के बीच में भी होता है. जब आप डाटा ट्रांसफर करते हैं, जब आप मेल करते हैं, जब आप लेटर्स भेजते हैं, दैट इज आल्सो मींस ऑफ कम्युनिकेशन. 3-4 मिनट के बट पहले कनेक्शन क्या है? दबा के लिए बस हुई थी. कनेक्शन इज द राइट वे टू मूव टू दैट पर्सन. इसको आप पर्सनली भी जोड़ सकते हैं कि दैट इज ऑन पर्सनल बेसिस. अब एज अ टीम वी आर वर्किंग हियर एज अ टीम, एज अ कलीग्स. हम यहाँ पे एक साथ कलीग्स की तरह काम करते हैं. तो फॉर अस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन? कलीग्स वर्क टुगेदर एंड interact in a constructive way. When we will work together, we will exchange our thoughts, we will give ideas, we can do constructive work together. ठीक है? And we if collective intelligence to develop new quality, we can do collective, we can gather collective information for betterment of this community. That is learning community. A positive climate takes shape where people pay attention to one another. Yes, if we will work together, a positive climate, we will create a positive climate. जहाँ पे काम करके अच्छा लगेगा. That is also connection. Contacts with others outside the organization are authentic, efficient, and bring along a win-win situation. इसमें मैंने बात किया कि फॉर ऑल, इसके लिए विन विन सिचुएशन आएगा अगर हम साथ मिलकर पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं कनेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ. तो पेरेंट, टीचर एंड स्टूडेंट तीनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा बिकॉज वी आर कनेक्टिंग थ्रू स्टूडेंट्स. तो दैट्स व्हाई कनेक्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन. नाउ हाउ कैन वी कनेक्ट विथ ईच अदर? द वन पॉइंट इज स्ट्रेट टॉक. अगर हम कोई भी बात सीधी करें, जैसा मैंने बताया, विदाउट जजमेंट्स, विदाउट स्टीयर मटेरियल्स को बिना मिक्स किए अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेट टॉक करें, दैट इज ऑल्सो कनेक्शन. कनेक्शन कम्स फर्स्ट इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप कनेक्शन. If we are connected well, we
very well. And connection multiplies communication. Yes, if we are connected, we can communicate in a very effective way. जितना ज़्यादा connected होंगे लोग हमारी बातें उतने अच्छे से समझ पाएंगे. Connecting and communication may often be used as synonymously. मतलब दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, but they are different. The truth is which we can all communicate. This does not mean we are successfully connected. हम communicate करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. There are lots many means of communication. You can communicate with your voice. Like I am giving some training program to you. I am communicating with you. Whether I am connecting or not, you will decide at the end of this session. तो communicate मैं कर रही हूँ, मैं अपने points बता रही हूँ. आप कितना connect कर रहे हैं ये आप decide करिएगा. और मैंने कितना आपसे connect करने की कोशिश की ये आप बताइएगा. So we can communicate with our voice, hands, eyes, and body language, and get your message across. उसी language में आपसे message मुझे मिल जाएगा. If I am standing here and watching everyone listening very carefully, I am very happy. कि लगता है मेरा voice सबको पसंद आ गया है. That I am very happy right now. और मैं सोच रही हूँ कि मैं connect कर पा रही हूँ. और उस connection के through मैं communicate कर पा रही हूँ. That is the connection and communication. So connecting goes beyond your words. You can connect with each other, not by your actions, not by your words, but by your heart. आजकल एक छोटा सा मैं बताऊं कि मोबाइल में बहुत सारे emojis होते हैं. Sometimes we don't want to reply in detail like how are you, yeah, I am frustrated right now, I am crying, I am not well. उसके सबके emojis आते हैं. So we simply put that emoji and send that message. We cannot make effort कि मैं अपने उसको लिख पाऊँ कि मैं परेशान हूँ. तो अब आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ हमने कम्युनिकेट किया कि कनेक्ट किया. आप बता सकते हैं कि यहाँ मैंने कम्युनिकेट किया सिर्फ कि कनेक्ट किया. Yes, कनेक्ट किया और कम्युनिकेट भी किया. मतलब आपने उस इमोजी के थ्रू बताया, अपनी परेशानी बताई. I am not well today. That is the connecting communication. So we should not only communicate, but we must have connecting communication. So effective communication, why it's important? As we are teacher and we have to communicate with parents, we should be very careful. कैसे बातें कैसे कम्युनिकेट करना है, इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करना है, इस बात को लेकर बहुत केयरफुल रहना चाहिए हमें. सो व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट. व्हेन यू, हियर आई हैव मेंशन्ड यू means we teachers. When you and parents understand and trust each other, you will be better to able to work together to support children's well-being and development. Initially in this session, I have mentioned that students are bridge to parents and teachers. तो जब हम साथ में मिलकर काम करेंगे and we will interact with each other very effectively and with trust, we can work together to make children's well-being very good. So ultimately, our aim is to make a good citizen or make a good student and make a good community center of this school. So this is the why effective communication is key to establishing and maintaining positive relationship with parents. Effective communication are keys to establish or maintain positive relationship with parents. अगर हम effectively
हो पाएंगे। Why communication is important? क्यों communication important है? Why? Cultivating parent-teacher relationship is vital to the development of school as a learning community. मैंने शुरू में ही बताया था कि parent-teacher relationship जो है ना, ये बहुत vital होता है किसी भी स्कूल को चलाने के लिए। And communicating with parents is critical for establishing parent-teacher relationship. यहाँ पे एक वर्ड है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मीनिंग, शाब्दिक अर्थ की अगर बात करेंगे तो सबको पता होगा कि saying what is wrong with somebody or something, not only what is wrong, what is right also. Criticism. तो and fundamental term is related to basic and important. So communicating with parents is critical for establishing parent-teacher relationship. मतलब हमको कैसे कम्युनिकेट करना है, कितना बच्चे के बारे में बताना है, किस तरह से बताना है, that is very important. कैसे भी आप ऐसे बच्चे के पास कोई पेरेंट आते हैं और हमने कहना शुरू किया आपका बच्चा बहुत बेकार है एंड ऑल, एट दैट टाइम एट द सेम टाइम पेरेंट्स को लगेगा अरे मेरा बच्चा खराब है, बच्चे को लगेगा कि मैं तो खराब। तो इस तरह से हमको कम्युनिकेट नहीं करना है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। यू हैव टू कन्वे ऑल अबाउट दैट चाइल्ड, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, उसकी कुछ अच्छी बातें और कुछ जो उसमें कुछ बैड हैबिट्स हैं उनको भी डिस्क्लोज करना है, बट इन अ वेरी इफेक्टिव वे। पेरेंट-टीचर कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल, बेसिक स्टेप होता है। पेरेंट-टीचर कम्युनिकेशन इज अ बेसिक स्टेप फॉर व्हाट? टू इन्वॉल्व फैमिलीज इन अ एजुकेशन प्रोसेस। फैमिलीज को एजुकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का फर्स्ट फंडामेंटल बेसिक स्टेप होता है। बिना इसके हम बच्चों को आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वी आर टीचर्स एंड वी आर पेरेंट्स ऑल्सो। वी ऑल नो दैट व्हाट इज नेसेसरी फॉर अ चाइल्ड एज अ पेरेंट और एज अ टीचर। सो here are some reasons I have mentioned why parent-teacher communication is beneficial. PTM होता है ना स्कूल में, PTM रखते हैं रिपोर्ट कार्ड के लिए, PTM पेरेंट-टीचर मीटिंग रखते हैं। क्यों ऐसा रखते हैं? शुरू से स्कूल्स में मैं भी गई हूँ अपने बच्चों के स्कूल में, आप भी जाते रहे होंगे। कुछ बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं, कुछ के नहीं आते। तो ये मतलब मैंने यहाँ बताया है कि वाई पेरेंट-टीचर कम्युनिकेशन इज बेनिफिशियल। जिनके पेरेंट्स नहीं आते हैं, लास्ट में हम बाइंड ऑफ द डे क्या सोचते हैं कि उनके माँ बाप को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अपने बच्चे में, लेकिन आना चाहिए, आना चाहिए और ये ज़रूरी है। तो ये मैसेज हम किस तरह से पहुँचाएं पेरेंट्स के पास, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो टॉप 5 रीजंस व्हाई पेरेंट-टीचर कम्युनिकेशन इज बेनिफिशियल। इंक्रीजेस ट्रस्ट बिटवीन स्कूल्स एंड फैमिलीज। जब भी हम कहीं से मिलते हैं एक दूसरे से, कहीं भी पेरेंट-टीचर छोड़ दीजिए, अगर पर्सनली भी हम किसी से मिलते हैं तो साथ में मिलते मिलते बात करते करते एक दूसरे में ट्रस्ट बढ़ता है, एक दूसरे पर भरोसा आता है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से उनकी कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें हम एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। तो सेम है यहाँ पे, बस टर्म चेंज हो गए हैं। पर्सनल लेवल पे नहीं करके मैंने टीचर्स और पेरेंट्स को इंक्लूड कर लिया। तो कम्युनिकेशन इंक्रीजेस ट्रस्ट बिटवीन स्कूल्स एंड फैमिलीज। यहाँ कम्युनिटी की बात हो गई, स्कूल्स की बात हो गई, फैमिलीज की बात हो गई। And next, encourages higher and realistic parental expectation. Every parent has some expectation from the particular school or from the particular teacher. हर गार्जियन सोचता
उसकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें यही तो मैसेज करना है कि हम तो यहाँ हैं, आपको भी रहना पड़ेगा। So serves as the first step to other types of parent involvement forward and leads to a higher degree of parents' commitment to helping their students improve. इसमें पेरेंट्स का रोल जो है ना, जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उतना स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिलेगी और हम उनको बहुत अच्छे पैमाने पर सुधार सकते हैं या उनको आगे बढ़ा सकते हैं। सुधारना टर्म इज नॉट राइट टर्म। बच्चे हमेशा बिगड़े में ही नहीं रहते हैं, उनको बस सही रास्ता दिखा के आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसे में पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड पुट्स एवरीवन ऑन द सेम पेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक गार्जियन जो आपसे मिलने आता है वो आपकी नज़र में इक्वल होना चाहिए। स्पेशल प्रेफरेंस क्यों देना? अगर मान लीजिए कोई पुअर बैकग्राउंड से कोई धोती पहने हुए गार्जियन आ जाए तो क्या आप उसके साथ मिसबिहेव करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसी बैकग्राउंड से आ रहा है। और अगर कोई गाड़ी में आ रहा है तो आप उसको स्पेशली ले जाके बैठाएंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन का मतलब है कि इफ अ गार्जियन कम्स टू यू, आप सबको इक्वल सीट देते हैं। ऐसा नहीं किसी को आप बगल में बैठा लेते हैं और किसी को आप कह देते हैं आप पीछे बैठिए, यू वेट टिल आई विल बी फ्री। ऐसा नहीं होता है। आप उसको भी जैसे कोई गार्जियन आए आप उसको इक्वली ट्रीट करिए, वेलकम करिए, चाहे वो कैसे भी ड्रेस में आए, कैसे भी वेशभूषा में आए। So puts everyone on the same page. Parent-teacher communication. So these are top 5 reasons why parent-teacher communication is beneficial. क्यों beneficial होता है? What is parent-teacher communication? Communication may involve impression created or words expressed. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा? कोई ऐसा वर्ड आप एक्सप्रेस इस तरह से करते हैं या कोई इंप्रेशन आप ऐसा बना देते हैं कि पेरेंट के माइंड में आपकी ही बातें सही लगने लगती हैं। तो ये कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेशन? द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इम्प्रेसिंग सच एज ए एंड, जैसे वॉवेल लगाते हैं ना, यहाँ ग्रामर की थोड़ी सी बात हो रही है कि किसी पार्टिकुलर एंड आजकल वो क्या कहते हैं ऐसे कॉमा का साइन करते हैं टीवीज वगैरह में। किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट दिखाना हो तो दैट वाइटल ऐसे साइन करते हैं, डबल कॉमा। सो उस चीज़ को इम्प्रेसिव ढंग से कैसे आप बता रहे हैं, जैसे किसी स्पेशल वर्ड के पहले ए एंड द लगाना, उसको इम्पोर्टेंट बना देना ताकि एट दैट टाइम गार्जियन सोचे कि नहीं ये कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं टीचर है। एंड ऑफन फेवरेबल इन्फ्लुएंस और बैकग्राउंड फीलिंग सेंस और माइंड, और इस तरह से वो इफेक्ट छोड़ता है जैसे कि फीलिंग पे, सेंस पे, माइंड पे अच्छा इफेक्ट छोड़ता है इम्प्रेशन। एंड पेरेंट्स विल बी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये तो एक पॉइंट हो गया कि कैसे टीचर्स कम्युनिकेट करें। एंड पेरेंट्स विल बी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेलकम साइड, क्लीनलीनेस ऑफ स्कूल ग्राउंड, स्टूडेंट्स आर्ट वर्क ऑन द वॉल एंड साउंड्स इन द क्लासरूम। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स वी कैन इन्फ्लुएंस अ गार्जियन और एज अ पेरेंट। सपोज कि अ गार्जियन कम्स फॉर मीटिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा? हाउ वी वेलकम देम, कैसे हम उनको ग्रीट करते हैं। सपोज कि दे एंटर्स टू द क्लासरूम एंड वी से हेलो सर, हैव अ सीट। एट दैट टाइम उसको लगेगा कि नहीं, यहाँ तो टीचर्स कितने एजुकेटेड हैं, कितना अच्छे से उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट किया। तो जस्ट व्हाट वी हैव टू कन्वे, हेलो वेलकम सर, हैव अ सीट।
ये एक छोटी सी लाइन है बट काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। एंड क्लीननेस ऑफ स्कूल ग्राउंड, कहीं भी आप एक छोटे से मैरिज सेरेमनी या कहीं भी जाते हैं या कहीं भी किसी बड़े बिल्डिंग में जाते हैं तो आप देखते हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उसका ग्राउंड ये सब देखते तो आपके मन में एक अलग सा इंप्रेशन होता है कि वाह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। या एक और छोटा सा एग्जाम्पल कि आप किसी सेरेमनी में जा रहे हैं, वहाँ पे आप ऐसे डेली आप कैसे भी ड्रेस पहन के आ जाते हैं, लेकिन मैरिज सेरेमनी के लिए आप जा रहे हैं या कहीं भी छोटा सा फंक्शन है आपके मोहल्ले में तो आप उस दिन वेल ड्रेस होके जाते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जिनको कि आप नहीं जानते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आप जानते हैं। तो वेरी फर्स्ट यू एंटर दैट सेरेमनी, जो लोग आपको नहीं जानते हैं दे लुक एट यू कि हाउ वेल ड्रेस्ड ही और शी इज, हाउ वेल बिहेव्ड ही और शी इज। फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एट दैट टाइम जैसे आप एंटर करते हैं, आपके ड्रेस से, आपके चलने से, आपके बोलने से, तो जैसे फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, जैसे पेरेंट एंटर करेंगे स्कूल में, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई इतनी अच्छी होगी तो वो ऐसे ही इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसा है कि हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। And now, students' artwork on the wall. Our students are very talented. We also have artwork on our classroom walls. When the parents see that artwork, they think, नहीं यहाँ बच्चों को अच्छा सिखा रहे हैं. That also give impression and sounds in the classroom. Suppose कि Shriram sir is sitting behind this whole auditorium. Am I audible? या मैं audible नहीं हूँ? अगर पीछे वाले बच्चे को मैं equally audible हूँ या पीछे जो गार्जियन बैठे हैं मैं जो मैसेज कन्वे कर रही हूँ क्या उन तक पहुँच पा रहा है? क्या हमारे साउंड का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है? ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको देख के लगेगा कि क्या है इसमें क्या करना है, बट दे आर वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन। ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स होते हैं। सो व्हाट इज पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन? एक्सप्रेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वन वे और टू वे एक्सचेंज। व्हाट इज वन वे और टू वे एक्सचेंज? यस, कहीं भी कम्युनिकेशन में कोई वे होता है एक्सचेंज करने का, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को। There are two types of two-way, one-way communication or two-way communication. In one-way communication, there are so many points like letters, newsletters. अगर हम कहीं लेटर भेजना होता है पार्टिकुलर एड्रेस पे भी सेंड दैट लेटर, वहाँ चला गया, बच्चे ने गार्जियन ने पढ़ लिया, उसका रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया ये मुझे नहीं पता, हमने बस लेटर सेंड कर दिया। लेटर रिगार्डिंग एनीथिंग, मैं किसी पार्टिकुलर लेटर की बात नहीं कर रही हूँ। सपोज कि मैंने अपने मोहल्ले को लेके लेटर लिखा एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को, उधर से एडिटर हमको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका आंसर लिख के डीएम सर को हमने किया तो वो वापस उसको आंसर लिख के भेज दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। दैट इज टाइप ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। सेकेंड है रिपोर्ट कार्ड्स। अगर रिजल्ट आता है, बच्चों को हम रिपोर्ट कार्ड दे के भेज देते हैं, पता नहीं बच्चे ने पेरेंट को दिखाया कि नहीं, साइन कराया कि नहीं, और मतलब हम उसको देखते भी नहीं हैं वापस कि क्या अपने पेरेंट्स सिग्नेचर लिया नहीं लिया, बस भेज दिया। दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बुक्स। व्हाट इज कम्युनिकेशन बुक? किसी को आइडिया है व्हाट इज कम्युनिकेशन बुक?
होटल को लीव कर रहे हैं या किसी बड़े रिजॉर्ट को लीव कर रहे हैं, तो उसमें एक आपको फॉर्म देता है, उसमें आप लिखना होता है कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस, या कोई भी ओपनली कोई बुक या डायरी रखा रहता है, और एनी टाइम कोई भी आके उसमें कोई भी मीन्स कि अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका गार्जियन आपको उसमें लिख सकता है अपना ओपिनियन। उसमें तरह तरह के सिंबल्स बने होते हैं, लेटर्स बने होते हैं, यस और नो का साइन रहता है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं लाइक आर यू सेटिस्फाइड, यू कैन राइट यस और नो। अब आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं है ये उसमें मेंशन नहीं है। आर यू हैप्पी विद दिस स्कूल, नो, आपने रीजन मेंशन नहीं किया, क्यों है? तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पे एक तरफ की बात है, दूसरे साइड में क्या बात है ये आप तक नहीं पहुंची, दैट इज कम्युनिकेशन। हो रेडियो अनाउंसमेंट, रेडियो में जब भी अनाउंसमेंट होता है या न्यूज़ सुनते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं या बहुत सारे सजेशंस आते हैं। कैन यू गिव दैट सजेशन टू योर रेडियो? क्या दे सकते हैं? आप बस बोल के रह जाते हैं कि ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता तो अच्छा होता, बट यू कैन नॉट कन्वे योर मैसेज, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट, school website. Yes, we put some message on the school website. Parents read that message और वो फिर उधर से मैसेज नहीं करते हैं। These all are the one-way communication. Now we will see what is two-way communication. Telephone calls. Telephone calls में तो two-way होगा ही। When we call each other, हम कुछ बातें करते हैं, सामने वाले कुछ बात करते हैं, तो हमने जो बात कही उसका आंसर भी मिला, उन्होंने जो बात कही उसका आंसर हमने किया, दैट इज टेलीफोन कॉल्स। होम विजिट, आजकल जो स्कूल्स के कल्चर से उसमें होम विजिट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि समटाइम्स किसी काम की वजह से पेरेंट्स आ नहीं पाते, ऐसे में होम विजिट एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन वे है। अगर हम होम विजिट करते हैं उस, या सपोज कि किसी बच्चे के बारे में कुछ पता चला एंड वी वांट टू कॉन्टैक्ट दैट चाइल्ड और दैट पेरेंट, वी go to his home or her home, what happens? We get to know what is the problem. Then home visit is two-way communication. Parent-teacher conference. The term conference meaning, word meaning of conference क्या होता है? Small gathering. अभी आप सोच रहे होंगे कि वर्ड मीनिंग मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, आप लोग सब पढ़े, लेकिन थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस की बात की है। We are not sitting on the table with some water bottles and discussing about some, like आजकल के सिनेरियो में जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय बात कर रहे हैं, तो वैसे हाई लेवल टॉक्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी लेवल की बात हो रही है। पेरेंट टीचर, आप एज ए टीचर और एज ए गार्जियन, कैसे गार्जियन आपके पास आ रहे हैं, तो ये इसका जो दायरा है ना वो घट जाता है। तो देयर इज सम लिटिल डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम, आपने सुना होगा। तो दैट मैटर्स द साइज, कितना छोटा गैदरिंग है कि बड़ा गैदरिंग है। तो कॉन्फ्रेंस जो है, बाहर के देशों में कॉन्फ्रेंस, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि कभी भी टीचर्स जो है ना आर अवेलेबल टू पेरेंट्स एनी टाइम, या छोटा सा यू कैन से गेट टुगेदर रखते हैं, जिसको हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वी एक्सचेंज आवर आइडियाज, वी टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। देन open houses. Open house concept is very famous in US or British.
यूएस और ब्रिटिश में थोड़ा ज़्यादा कॉमन है ओपन हाउस। ओपन हाउस का मीनिंग हो गया कि कभी भी आपका स्कूल का कैंपस खुला होना चाहिए किसी भी गार्जियन के लिए। सपोज कि हमारे स्कूल के बारे में कुछ बार हम लोग कहते हैं अच्छा हमारा स्कूल या देखिए आप आगे मिले, तो आप नहीं भी रहे तो ऐसा ऑप्शन रहे कि दैट पार्टिकुलर गार्जियन कम टू द स्कूल एंड he or she can see the infrastructure of that school and can contact in office also. तो ओपन हाउस का मीनिंग ये हो गया कि आप खुले दिल से स्वागत कीजिए कि आप एनी टाइम आइए एज ए गार्जियन, वी विल वेलकम यू। इवन इफ वी आर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, वी वेलकम यू। तो दैट इज ओपन हाउस एंड स्कूल डेज कम्युनिटी एक्टिविटी। यस, sometimes we do annual sports, annual functions. उसमें क्या होता है, पेरेंट्स आते हैं एट दैट टाइम, कुछ इन्वॉल्वमेंट भी होता है पेरेंट्स का। सपोज बच्चों ने खेल लिया, अपने बच्चों को वो जीतते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। एंड लास्ट में क्या होता है, एक गेम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है कि सारे पेरेंट्स प्लीज गेम में आइए। इससे क्या होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है, दे एंजॉय दैट इन्वॉल्वमेंट वेरी मच, उनको अच्छा लगता है। तो दैट इज दीज आर द टू वे एक्सचेंज कम्युनिकेशन। तो इन योर ओपिनियन विच कम्युनिकेशन इज गुड, वन वे और टू वे? यस, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन इज मोर बेनिफिशियल, one way better than one way communication. Now communication through various ways आपने सुना है, verbal, non-verbal, using technology. At the time of COVID-19 we have used lots of technology, बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, लेकिन integrating technology can help schools communicate quickly to a broad community. अगर हम एक एक करके मैसेज किसी के पास भेजेंगे, it will take time. लेकिन अगर हम सपोज कि अभी हमने वेबसाइट पे मैसेज डाल दिया स्कूल की साइट से कि इस टाइम से एग्जाम है, या व्हाट्सएप है, या बहुत सारे ग्रुप हैं, तो इंटीग्रेटिंग का मतलब पूरा फोकस ऑन दैट पार्टिकुलर पार्ट। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज द नीड ऑफ टुडेज टाइम, ये आज की ज़रूरत है। अगर इसमें हम नहीं आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजीज में हम फोकस नहीं करेंगे, तो वी कैन नॉट कीप द मच, हम नहीं ज़्यादा दे पाते, क्योंकि बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। तो हमें भी टेक्नोलॉजी में फोकस करके और एक्सपर्ट होना होगा। एंड टेक्नोलॉजी वर्क्स फास्टर, बहुत तेजी से काम करते हैं। जो काम हम बहुत स्लोली करते हैं, या हम सोचेंगे कॉल करेंगे, एंड एट द सेम टाइम वी कैन सेंड मैसेज, और बहुत बड़े पैमाने पे हम पेरेंट्स को जोड़ सकते हैं अपने आप से as a school community. Now classroom phones and voice calls. Some technology integrating points are here. Classroom phones और voice mails. Voice mail send कर सकते हैं या classroom call कर सकते हैं। Suppose कि आप classroom में enter करते हैं, suddenly आपको कुछ लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, या बच्चा बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, आप एट दैट टाइम फोन करिए उस बच्चे को, या उसके गार्जियन को कॉल कर सकते हैं कि योर चाइल्ड इज नॉट वेल, यू कम एंड टेक योर चाइल्ड विद यू। आप ये मैसेज कर सकते हैं, या आप ये बता सकते हैं कि ये बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है। तो वो बच्चा क्या होगा, डरेगा। उस टाइम क्या, मोबाइल फोन्स ने आपके काम को इजी कर दिया, आपने अपने मैसेज को तुरंत कन्वे किया। एंड वीडियो टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैं जो टर्म्स बोल रही हूँ उसमें से कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसको आप नहीं जानते। फैमिली मेम्बर से शाम को वीडियो पे बात करना एंड ऑल दैट आप तो करते हैं,
तो सेम स्टूडेंट्स के साथ करेगा तो इट विल बी फ्रूटफुल. देन रेडियो अनाउंसमेंट. दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ स्प्रेडिंग न्यूज वेरी फास्ट. अगर रेडियो अनाउंसमेंट करवा दिए तो वो भी सब तक बहुत तेजी से फैलता है. एंड स्कूल वेबसाइट, ऑब्वियसली स्कूल वेबसाइट पे अगर आपने कोई मैसेज डाल दिया तो एट द सेम टाइम सारे गार्जियन उसको पढ़ लें. तो दीज आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. इंटीग्रेट करना है हमें टेक्नोलॉजी को, फोकस करना है हमें टेक्नोलॉजी. नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन centers around 5 different topic areas. As a parent teacher communication, अभी हमें जाके उससे बगल की शादी के बारे में डिस्कस नहीं करना है कि बगल की शादी में गए तो उन्होंने वैसा खाना खिलाया और वैसा कपड़ा पहना. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते. दैट इज ऑन वेरी पर्सनल लेवल. ये आप पर्सनली उसको अगर जानते हैं तो आप उससे बातें करिए. बट एज ए टीचर अगर आप किसी के घर जा रहे हैं या एज ए टीचर आप किसी गार्जियन से बात कर रहे हैं तो आपका पॉइंट 4-5 पॉइंट्स के अंदर नहीं फोकस करना चाहिए. क्या है वो पॉइंट्स? एकेडमिक परफॉर्मेंस. आप बच्चे के किस किस बारे में बात कर सकते हैं. एकेडमिकली बच्चा कैसा है, क्या परफॉर्मेंस है, कैसा पढ़ रहा है, टेस्ट में कैसा कर रहा है, असेंबली में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है. You should discuss these points. And classroom behavior, how a child behaves in your classroom. आप एंटर करते हैं तो क्लासरूम में उसका बिहेवियर कैसा है ये आप डिस्कस कर सकते हैं एक पेरेंट से. एंड चाइल्ड्स एकेडमिक एंड सोशल प्रिपरेशन फॉर स्कूल. आप उस पर्टिकुलर बच्चे के पेरेंट से ये बात करें कि उसका सोशल बिहेवियर, उसका एकेडमिक बिहेवियर कैसा है, कम्युनिकेशन बिहेवियर कैसा है, किस तरह से वो बात करे, किस तरह से वो बिहेव करे. ये मिलके आप बात करिए. अगर मान लीजिए उसके बिहेवियर में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसके गार्जियन से कांटेक्ट करिए और पूछिए कि क्या दोनों आप लोग मिलकर उस बच्चे के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं. सपोज कि कोई बच्चा स्कूल में है काफ़ी शाय है. मेरे क्लास में ही एक बच्चा है, उसका एक्सेंट बहुत अच्छा है बोलने का. तो मैंने एक बार उससे बोला कि बेटा तुम असेंबली में जाओ और न्यूज़ बोलो. उसने बोला कि मुझे माइक देखने डर लगता है और मैं भूल जाता हूँ. मैंने बोला कि नहीं, भूलना नहीं है, बस आपको रीड करना है. जो न्यूज़ के पॉइंट्स रहेंगे आपको रीड करना है. बोला नहीं मैम मैं कर ही नहीं पाऊँगा. और मैं सोच रही थी कि उसको करना चाहिए बट वो तैयार नहीं है किसी भी तरह से. तो क्या इस बिहेवियर के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है? क्या उसको बार बार कहने से उस बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो सकता है? क्या वो कभी बोलने के लिए रेडी हो पाएगा? तो वी शुड डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स. नाउ hostile communication between peers and health related issues. Hostile communication. Here I would like to expand this word. Hostile. Hostility manifest. Communication when people use verbal and non-verbal messages to express irritability, negativity, resentment and suspicion. क्या है hostility? And people with these traits tend to have quick temper, little patience, exhibit moodiness and become exasperated when something goes wrong. This is hostile communication. Peers क्या होते हैं? Peers किसी को आइडिया है इस वर्ड का मीनिंग? peers yes no स्पेलिंग गलत है. peer pressure. peer साथी हो सकता है. यस peer. इसलिए मैंने ये टर्म है थोड़ा नाशपाती लगता है, सीजन चल रहा है इसलिए नाशपाती सबको याद आया. peer, a person who is of same age or position in society as you, that is peer.
कम्युनिकेशन। किसी बच्चे कोई बच्चे ना जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को जल्दी आने लगते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इरिटेशन होती है और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ये सब के बारे में बात करना है एज ए पेरेंट कि भाई ये कैसे दूर होगा। एंड पीयर प्रेशर, मान लीजिए क्लासरूम में 4-5 बच्चे बैठे हैं, 40 में क्या 50 में 4 बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, चारों बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, सेम कॉलोनी से आते हैं, सेम सोशल फाइनेंशियल उनका लेवल है, एंड इन क्लासरूम सपोज कि किसी टीचर ने एक बच्चे को क्वेश्चन पूछ दिया तो दूसरे वाले के मन में सडनली ये थॉट आएगा कि क्यों मैं नहीं, क्या मैं कर नहीं सकता हूँ। ये नेचुरल है, ये अगर बच्चे के मन में आ रहा है दिस इज नेचुरल, ये आना ही है थॉट। हमारे मन में भी कभी कभी आ जाता है, एम आई राइट? हमारे मन में भी आ जाता है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों हमारा उतना नाम नहीं होता। क्या ऐसा होता है आपके साथ? होता है, ये सबके साथ होता है, लेकिन ये टीनेजर्स में और बच्चों में ज़्यादा होता है, तो इस पर ज़्यादा वर्कआउट करना है। बच्चों को ये फील कराना है कि नहीं, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट इन माई क्लासरूम। तो अगर फर्स्ट टाइम आपने किसी बच्चे को मौका दिया तो सेकेंड टाइम आप दूसरे बच्चे को मौका दीजिए, सो दैट उनको लगे कि नहीं समटाइम्स आपको पता है कि बैक बेंचर्स जो होते हैं उनको भी आप मौका दीजिए, ये कह के कि यू कैन डू, ये ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। और हेल्थ रिलेटेड इशू, अगर बच्चे को कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है, सपोज कि मेंटल और फिजिकल किसी भी तरह का कोई इशू है, तो यू डिस्कस विद देयर पेरेंट्स। अगर कोई बच्चे को कुछ सबसे पीछे बच्चा बैठा है और वो कुछ लिख नहीं पा रहा है, एंड यू नोटिस हिज बिहेवियर, क्यों नहीं लिख पा रहे हो बच्चे, बोल रहा है मैं देख नहीं पा रहा हूँ बोर्ड पे, तो आपका अभी यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके पेरेंट्स से जब मिले तो कहें कि शायद इस बच्चे के आई में कुछ प्रॉब्लम है, या वो सुन नहीं पा रहा आपकी बात, या वो समझ नहीं पा रहा है आप जो पढ़ाना चाहते हैं। ये मैसेज आपको उसके गार्जियन से मिलकर कन्वे करना होगा कि इस बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो दीज आर द आवर पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन शुड सेंटर्स अराउंड दिस डिफरेंट एरियाज। मैंने बताया इसी एरिया के अराउंड एज ए टीचर आप बात करेंगे, बाकी पर्सनल लेवल पे आप कैसे भी बात कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, वो दूसरी चीज़ है। नेक्स्ट, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स, किसी भी चीज़ को कहीं पहुंचने से रोकना, दैट आर बैरियर्स। देयर आर डिफरेंट लेवल्स विच आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एट पेरेंट लेवल, एट सोसाइटी लेवल, एट स्कूल लेवल। बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेट करने में ये परेशान करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। एट कल्चरल डिफरेंसेस, फर्स्ट सोसाइटी लेवल पे हम देखते हैं व्हाट इज द बैरियर ऑन सोसाइटी लेवल, कल्चरल डिफरेंस। सीक आउट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड, क्या सोल्यूशन होगा। कल्चरल डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस मतलब डिफरेंट कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, डिफरेंट लोकेलिटी से बच्चे आ रहे हैं, क्या उनका सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं इस बैरियर को कम करने में। सीक आउट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अगर मान लीजिए इंडिया है या वर्ल्ड में कितने सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, कोई कितना भी एजुकेटेड हो ऑल ओवर वर्ल्ड का लैंग्वेज नहीं बोल सकता है। इवन हमारे प्रधानमंत्री भी कहीं जाते हैं किसी ऐसे देश में, इंग्लिश हिंदी की बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है उस पार्टिकुलर देश के, जैसे प्रधानमंत्री या कुछ भी क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। यहाँ पे लिंग्विस्टिक डिफरेंस है। हम इवन इंडिया की बात करते हैं, वी विल गो टू ट्रैवल साउथ इंडिया,
area of language, regional language. Otherwise, we will get some problem. तो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम या कल्चरल प्रॉब्लम है, इसको दूर करना है और समझना है कि क्या किस तरह से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह से उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि इन स्कूल्स देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस. इवन some parents do not know Hindi, to speak in Hindi, which is our national language, mother tongue, नहीं बोल पाते हिंदी भी. तो उनको उनके लैंग्वेज में कैसे समझा पाना, उनके बच्चों की बातों को उनके लैंग्वेज में पहुंचा पाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट, seek out interpreter service when and where needed. Interpreter service. What is interpreting service? Interpreting services are provision of spoken or sign language by professional interpreter to convey a message from language of original speaker or writer into language of listener. अगर आप नहीं बोल पाते हैं वो पार्टिकुलर लैंग्वेज, तो आपको इंटरप्रेटर रखना होगा जो आपकी बात को ट्रांसलेट करके उस पार्टिकुलर, सपोज कि हमारे सेंट माइकल फैमिली में कोई साउथ इंडियन बच्चा आ जाता है एंड ही डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी और भोजपुरी, ही ओनली नो सपोज तमिल और इंग्लिश. समटाइम्स वी हैव सम प्रॉब्लम. So at that time we need interpreter which can help him to understand the language of this particular Bihar. वहाँ पे इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है सर्विस, अगर ऐसा केस होता है तो. नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट फेसेस ऑफ डाइवर्सिटी इनटू चिल्ड्रंस लिटरेचर. और ये जो डाइवर्सिटी है इसको बच्चों के लिटरेचर में ऐड करके उनको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में अवेयर करके हम कुछ बैरियर्स को कम कर सकते हैं कि नहीं इसका कल्चर वो है, इसका कल्चर वो है, इसका लैंग्वेज वो है, नो प्रॉब्लम. हम साथ में मिलके अलग अलग लैंग्वेजेस की, लाइक हमारे स्कूल में ही इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू 4 लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, राइट. 4 लैंग्वेज की पढ़ाई हमारे स्कूल में होती है, तो 4 लैंग्वेज यहीं पे हमने सीखी है. तो इस तरह से बच्चों के अंदर कुछ ये कर सकते हैं. अब पेरेंट लेवल पे क्या है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट वाज अबाउट सोसाइटी लेवल. अब ऑन पेरेंट्स लेवल, वेयर इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन. पेरेंट्स ओन नेगेटिव स्कूल एक्सपीरियंस and parents may not understand how to effectively interact with teacher or school. Sometimes parents का खुद का स्कूल एक्सपीरियंस बुरा होता है, लाइक वो किसी ऐसे जगह से पढ़ाई किए रहते हैं, छोटा सा पेड़ के नीचे और छोटे से झुग्गी में पढ़ाई किए रहते हैं, या स्कूल में पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, या बहुत किसी कारण से मार खा रहते हैं, जो भी हो, बहुत सारा का इम्पैक्ट होता है. वो जैसा हम होते हैं वैसे सामने सोचते हैं, ऐसा कहा जाता है. तो उनका ओन एक्सपीरियंस, या समटाइम्स वो जानते नहीं हैं कि कैसे स्कूल के साथ या टीचर्स के साथ बिहेव करना है, या समटाइम्स वो हेजिटेट करते हैं कि अगर मैं जाऊँगा तो पता नहीं कोई अच्छे से बात करेगा कि नहीं. These are barriers at parents level. Then what should be the solution? क्या solution होना चाहिए? Provide guidelines in checklist format for managing their concern and encourage parents to gather information. ऐसे में पेरेंट्स को encourage कीजिए कि आप हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, आप बाहर से हमारे स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए. उनको एक जैसे होता है ना फॉर्मेट बना के दीजिए कि हमारे स्कूल में ये है. आपको अगर कंफर्म करना है तो बाहर से भी कंफर्म कर सकते हैं, या यू कैन कम टू स्कूल एनी टाइम एंड यू गेट कंफर्मेशन, कहीं से भी आप कंफर्म हो सकते हैं. तो दीज आर बैरियर्स एट पेरेंट्स लेवल. इकोनॉमिक सिचुएशन एंड टाइम कॉन्स्टेंट्स.
समटाइम्स पेरेंट्स का इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं होता है वैसा, या टाइम की कमी होती है, नहीं मिल पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं स्कूल के टीचर्स के साथ। वैसे में क्या सोल्यूशन है? We should understand as a teacher, we should understand the parent schedule and availability. जैसे उसके एक बच्चा बोला कि मेरे पापा यहाँ नहीं रहते, मैं शशि मैम ने उससे पूछा तो उसने बोला कि मेरे पापा यहाँ नहीं रहते, तुम बात नहीं करते? नहीं, हम बात नहीं करते। क्यों भाई? तो वो बाहर रहते हैं और हम उनसे बात नहीं कर पाते, जब वो आते हैं तभी हम मिल पाते हैं। तो हमें वो टाइम नोटिस करना है, उस बच्चे ने कब बोला उसके गार्जियन अवेलेबल है, एट दैट टाइम वी शुड मीट हिज पेरेंट और हिज फादर। सो प्रोवाइड पेरेंट्स विथ इंफॉर्मेशन व्हेन एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट। पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन दीजिए कि हम कब आपसे और कैसे मिल सकते हैं, किसी तरह से ये मैसेज कन्वे कीजिए, either writing diary or by making calls and home visit. You can also do home visit. अगर बच्चा किसी कारण से नहीं बता रहा है, parents are not available at that time, then go to that child's home and make sure that that child is right or wrong. उस बच्चे के घर जाके आप पता कर सकते हैं कि क्यों उसके बच्चे के गार्जियन आ नहीं रहे। And provide child care option in school building during meetings. आप स्कूल बिल्डिंग में जो मीटिंग्स रखते हैं उसके ड्यूरेशन में आपके स्कूल में क्या काम हो रहा है, किस तरह से आप चाइल्ड का केयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गार्जियन देखते हैं। सपोज कि कोई गार्जियन आ रहा है ऑफिस में मिलने के लिए एंड सडनली सम स्मॉल किड्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, और किस तरह से बच्चा मान लीजिए खेल रहा और गिर गया, एट दैट टाइम स्कूल के साइड से उस बच्चे का कैसा केयर दिया गया, दैट ऑल्सो गिव्स सम इम्प्रेशन टू पेरेंट्स। सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। व्हाट इज द प्रॉब्लम एट स्कूल लेवल? ये तो हो गया पर्सनल लेवल पे, पेरेंट्स लेवल पे। स्कूल लेवल्स पे भी कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। What are use of technical jargon? Avoid technical educational jargons, explain jargons and acronyms, and audio message for below literacy level. Jargon. What is jargon? Jargon, special words or expressions used by a professional or group that are difficult for others to understand. कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जो दूसरे को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको मैं एक दो एग्जाम्पल से बताऊंगी आपको। लाइक चूँकि मैं डॉक्टर्स के घर से हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। एक टर्म है टैकीकार्डिया। If you go to doctor and doctor write on his prescription you have tachycardia, थोड़ा सा जानकार है तो कार्डियक वर्ड पढ़ के ही आधा बीमार हो जाएंगे कि जरूर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। बट